Good morning, students. From this chapter in teachers, one topic is left. Okay, so first of all, we will revise that topic. The name of the topic is absolute value of an integer. Write down absolute value of an integer. Fine. Anyone? Yes, Arman. ये डेफिनेशन नहीं है. Yes, students, what do you understand by this absolute value of an integer? Anyone? If you want to reply, raise your hand. We have already done absolute value of an integers in integer chapter. Absolute value of an integer is value which is regardless of sign. जैसे हरमन ने बोला है वो बिल्कुल सही है. रिगार्डलेस ऑफ साइन, जिसमें आपने साइन को काउंट नहीं करना. यू विल नॉट काउंट नेगेटिव साइन. सो वैल्यू विच इज रिगार्डलेस ऑफ साइन, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से उसके साथ नेगेटिव भी है तो आपने नेगेटिव को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है एंड चेंज दैट टू पॉजिटिव. Whenever you will observe this thing in maths, this is not a bracket. ये ब्रैकेट नहीं है. ब्रैकेट कौन सी होती है? ये सिंपल ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. ओके, एंड दिस इज कर्ली ब्रैकेट. दिस इज कर्ली एंड वन इज स्क्वायर ब्रैकेट. ये ब्रैकेट नहीं है. टू स्ट्रेट लाइंस. 11 लिखा हुआ है मैंने. मैथ्स में जब भी आपको ये दिखेगा 11 विद गैप, ये वाला 11 नहीं, गैप में लाइक दिस, देन दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू. ये ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू. फाइन. सो -9 किसमें? कौन कह रहा है ब्रैकेट में? -9. ओके, क्या बना हुआ है उसके साइडों पे? 11. इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू. दिस इज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. अप्लाई द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? Absolute value means a value which is regardless of sign. Negative हटा दो. So what is the result? Only 9. What is the result? Only 9. Himalaya, write down. Shut up. Come here. आप लिखते नहीं हो. Sit here. बैठो यहाँ पे. So next is, what about this 8? What about this 8? Yes, students, what is the result of this 8? Write down in the chat box. 8 or -8? Yes, very good. The result is 8. ये नहीं है भी आप कहोगे मैडम ने इसको माइनस को प्लस में चेंज कर दिया तो चलो हम प्लस को माइनस में चेंज कर दें. नो. Absolute value means value which is always positive. Positive is always positive. Negative भी किसमें चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में. This is 8.
Fine. So this is the meaning of absolute value. Whenever you will observe two straight lines, also known as mod, इसको mod भी बोलते हैं, but mod word higher classes में use करेंगे हम, अभी नहीं. Fine. So this will represent absolute value. Absolute value is always positive. So write down one question. Solve one question based on absolute value. Solve minus 18 plus minus 16. This is the question. Minus 18 absolute value plus minus 16 absolute value. Fine. Yes, Gaurish, any doubt? No, ma'am, I just raised hand for the solution. Now tell me, what is the solution of this part, first part? Yes, ma'am, plus 18. Plus Or 18 normal. or simple 18. Okay, so this is 18. This is operation plus. What about this? Yes, ma'am. What about Ma'am, this? 16, normal 16. So this is 16. 18 plus 16. What is the result? Yes, in the result you will write 34. So like this you will solve the sum. First of all, good. Not 24 मितार्थी, 34. 24 बेटा नहीं है, 34 है. Yes. First of all, write down the solution of this. Minus 18. So what is the solution? 18. Now, what is the solution of minus 16? The solution of this minus 16 is 16. So 18 plus 16 will give 34. Fine. Now come to the next question. Second question. Again, solve, evaluate, find out. कुछ भी लिखा हो सकता है बेटा पेपर में. सॉल्व लिखा है तब भी सॉल्व भी करना है. इवेल्युएट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है अभी इवेल्युएट में कोई और ही मेथड आएगा. इवेल्युएट का भी मतलब वही है सॉल्व करना. अगर लिखा है फाइंड आउट उसका भी यही मीनिंग है सॉल्व करना. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज माइनस दिस माइनस minus 13. What about this? Yes, Devang, unmute yourself. Yes, ma'am. Tell me, what is the solution of this first part? 7 will change into plus 7 or 7. Minus 7 will change into 7 or plus 7. Okay. This is minus 7 will change to 7. Okay, next is not for you. Fine. Drishti, unmute yourself. Yes, ma'am. Tell me, what about this second number? Ma'am, 13 plus 13 or 13. Now tell me, what about this? What about this? Ma'am, minus. What about? Yes, Saipreet, stand up. क्यों प्लस क्यों नहीं हुआ? एब्सोल्यूट वैल्यू का सम नहीं है ये, तो इसमें इसको प्लस नहीं करना. यस अर्शिया. Yes, this is operation. This is not for the absolute value. ये टू नंबर्स के इन बिटवीन है, ये ऑपरेशन है. तो ये ना हो भी आप ऑपरेशन को भी चेंज कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं. सिट डाउन. वेरी गुड. स्टूडेंट्स को क्या लगता है एब्सोल्यूट वैल्यू का सम है सारे प्लस कर दो, तभी मैंने ये सम करवाया है. ओके.
ये जो इन बिटवीन है, दिस इज नॉट अंडर द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने। चेंज किस में होगा? जो एब्सोल्यूट वैल्यू के इनसाइड है। -7 इनसाइड, तो -7 विल चेंज टू 7. -13 inside, so -13 will change to 13, but there will be no change in this minus because this minus is the operation. Okay, so minus ने minus ही रहना है। चलो बेटा, now tell me what is the sign of 7? Plus or minus? Plus? Yes, Jyotin. Yes, students, write down in the chat box. What is the sign of this 7? Plus. As the sign of number is always in front of number. मैंने आपको ये बताया था ना जब मैंने ये इंटीजर चैप्टर रिवाइज करवाया है ट्यूसडे को या वेडनेसडे को भी। The sign of any number is always in front of the number. Yes, 7. Here we have no sign. It means the sign of plus. Different family, plus minus. मैंने आपको ये भी बोला था अगर प्रैक्टिस हो गई तो यहाँ पे वो प्लस माइनस डिफरेंट फैमिली सेम फैमिली लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, वो कंपलसरी नहीं है लिखना, वो मैं स्टार्टिंग में लिखवाती थी इसलिए भी आपको माइंड में फिट हो जाए। अगर आपको ऑरली ही आ गया है तो आप कर सकते हो उसको ऑरली ही, जैसे ये है +7 प्लस फैमिली, -13 माइनस फैमिली, different family means we get the result by subtraction. Okay, so what is the result? Yes, -6. तो कंपल्सरी नहीं है। So Karthik, this thing is clear to you? कंपल्सरी नहीं है लिखना भी पॉजिटिव फैमिली नेगेटिव फैमिली बोथ आर फ्रॉम द सेम फैमिली, वो इसलिए लिखवाते हैं भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो लिख के कर ले। ओके नहीं, वो तो मैं बेटा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं तो डालूंगी ना, समझ कैसे आएगा उनको। ओके, नाउ राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next is solve now tell me what about this? यहाँ पे -7 लिखो, 7 भी नहीं -7 लिखो। now tell me what about this? You will change the sign first or you will solve this first? यहाँ पे पहले सिंबल चेंज करोगे या पहले इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे? Yes, students, write down in the chat box in this question. What is the first step? Separation. Separation means remove of absolute value is the first step or solve is the first step? Yes, Arman. बिल्कुल नहीं, दोनों हो सकते, कभी भी नहीं होंगे। तो बन ही जाए, हर बार ही तो ना बनेगा, तो हर बार थोड़ी ना बनेगा, एक ही इसमें स्टेप है फर्स्ट। No, Drishti, your reply is wrong, beta. No. Yes, Karthik, unmute yourself. Start. Yes, ma'am. Ma'am. Yes. मैम अकॉर्डिंग टू मी वी विल मैम सबसे पहले जो -7 है उसको हम नॉर्मल पहले 7 लिखेंगे मैम, साइन हटा के उसका। नो कार्तिक, आपका भी रिप्लाई रॉन्ग है। यस अरमान, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व। बेटा वी आर एबल टू रिमूव द एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल इफ अंडर द सिंबल वी हैव सिंगल नंबर, तभी मैंने ये सम करवाया आपको।
always remove the absolute value symbol if inside we have single number. यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं है, इनसाइड डबल नंबर है, -7 भी है, -8 भी है. So first of all you will solve inside number and convert that to single. So this is -7 -8. -7 -8 will give you -15. Negative family, same family. We get the result by addition. So 15 along with minus sign. Yes. So first of all you will solve. So write this is. Now remove the absolute symbol. Now. Yes. So in the result 15. तो बेटा हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल तभी रिमूव करना है इफ यू हैव सिंगल नंबर इनसाइड. इफ यू हैव डबल, ट्रिपल, ओके, 2, 3 जितनी भी टर्म्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व. सो दिस इज -7 एंड दिस इज -8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व -7 -8. फाइन. कार्तिक, कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ? Now come to the next. Yes. Next is data handling. Is a branch of mathematics in which we have 3 steps. Tell me. Yes. Very good. Representing. Yes, representing the data नहीं बोलते, data बोलते हैं. Fine. So in data handling we have 3 steps. Collection of information, organization of information, okay. दृष्टि बेटा जैसे मर्जी सम आ जाए, चाहे 2 मार्क्स में आए, चाहे 3 मार्क्स में आए, चाहे 1 मार्क्स में आए, यू हैव टू सॉल्व द सम. आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सम, ओके. ऐसा नहीं है भी 3 मार्क्स में सॉल्व करना है, 2 मार्क्स में सॉल्व नहीं करना. In each and every. Yes. Yes, Drishti, unmute yourself. मैम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नहीं, जो डिफरेंट फैमिली और सेम फैमिली वाला है. नहीं वो तो सॉल्व तो नहीं, वो जो मैं नीचे लिखती हूँ डिफरेंट फैमिली सेम फैमिली. मैम यस, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर वाला सम मैम. हाँ तो वो तो चाहे सॉल्व करना ही पड़ेगा बेटा, चाहे 2 मार्क्स में है, चाहे 3 मार्क्स में है. ओके 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 मैम आपने अभी पॉजिटिव. अच्छा आप ये बात कर रही हो जो मैं नीचे लिखवाती हूँ, पॉजिटिव फैमिली, नेगेटिव फैमिली. यस मैम. ओके ओके ओके. वो बेटा मैं इसलिए लिखवाती हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए. वो चाहे 2 मार्क्स में है, चाहे 3 मार्क्स में है, आपकी मर्जी है लिखना है कि नहीं लिखना. ओके ओके मैम. मैं तो इसलिए लिखवाती हूँ ना क्योंकि यस मैम, थैंक यू. एक्सप्लेनेशन देनी है, समझाने के लिए. तो अगर आप लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, चाहे 2 मार्क्स है चाहे 3 मार्क्स है. ओके तो तब तो कराना ही था, तब तो न्यू चैप्टर था. आना कैसे था, वो नहीं लिखना था. तो नाउ डेटा हैंडलिंग. इन डेटा हैंडलिंग वी हैव 3 स्टेप्स. collection of information, okay, organization of information and representation of information. जो आप टैली मार्क्स का टेबल बनाते हो ना, टैली मार्क्स टेबल, टेल मी वो कौन सी कैटेगरी में आता है? कलेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में या रिप्रेजेंटेशन में? वेरी गुड. टैली मार्क्स टेबल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा
एंड एनी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो दैट इज नोन एज रॉ डेटा, उसको क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। जिसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है? टैली मार्क्स टेबल में, टैली मार्क्स टेबल। बट अभी अगर मैं, आप अभी अपनी क्लास में बैठे हो, रोल नंबर वाइज या अल्फाबेटिकली तो नहीं बैठे ना, तो अगर मैं आपके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पूछूं तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये रोल नंबर 1 तो नहीं है। ओके, तो ये जो रैंडम डेटा कलेक्ट हो रहा है ये क्या है? रॉ डेटा। इसको जब मैं सिस्टमेटिकली अरेंज करूंगी, अल्फाबेटिकली या रोल नंबर वाइज या सेक्शन वाइज, ए को अलग कर दूंगी, बी को अलग कर दूंगी, सेक्शन को, तो वो मेरी क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन। वो मैं उसको सिस्टमेटिकली जब अरेंज कर रही हूं तो वो मेरी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जब मैंने पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया या बार ग्राफ ड्रॉ किया, वो होगी मेरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, so in data handling we have main 3 parts: initial raw data और numerical data भी बोलते हैं इसको, but only if the information in terms of numbers. If you collect any information related to numbers, then one more name for this numerical data. अगर मैं आपके मार्क्स पूछूं इंग्लिश के टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, वो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, तो वो इंफॉर्मेशन नंबर्स की है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक डेटा। रॉ डेटा भी बोल सकते हो, बट उसको एक और नेम हम देते हैं, क्या है वो? न्यूमेरिकल डेटा। फाइन, नाउ दिस थिंग इज क्लियर। 3 parts. What is the meaning of raw data? Now next we have repetition of anything, repetition of any number again and again, उसको क्या बोलते हैं? Yes students, write down in the chat box. Let us suppose क्लास में 13 स्टूडेंट है, 13 में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कौन सा फ्रूट पसंद है? ऑरेंज। ओके, इट मींस ऑरेंज के लिए रिपीटेशन कितने टाइम्स हुई? 10 टाइम्स। 13 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंज, सो this repetition of anything again and again, no Savya, your reply is wrong. tally marks थोड़ी ना बोलते हैं उसको, कुछ ऐसी मार्क्स बोलते हैं। यस, हाँ मुझे सुन, नहीं उसको बोलते क्या? अच्छा 10 टाइम्स बोलते हैं? नहीं 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 नहीं। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ किसको बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन इज अ पिक्टोग्राफ यूजिंग पिक्चर्स। नाउ राइट डाउन, repetition of any number again and again is termed as frequency. Frequency. Repetition of any observation, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है उसको कंप्लीट बोलते हैं रॉ डेटा, और सिंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। ओके, so repetition of any observation again and again is termed as frequency. Frequency. ऑरेंज कितनी बार रिपीट हुआ? 10 टाइम्स, तो वो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 10. Repetition of anything again and again is termed as frequency. Okay, total information is raw data. Single, अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, अगर मैं हिमालय की बात करूं, सिर्फ भी हिमालय को ऑरेंज पसंद है, तो वो सिंगल ओनली हिमालय का क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। सिंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। कंप्लीट को क्या बोलते हैं? डेटा। डेटा
वो तो रिपीटेशन को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जब कोई चीज अगेन एंड अगेन खुद को रिपीट करती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ. सव्या, पिक्टो से ही क्लियर हो रहा है पिक्चर्स. whenever we will represent any data using pictures, then that is called pictograph. Fine. Savya, this thing is clear to you? Now next we have, yes, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, रॉ डेटा किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं. जैसे ये मार्क्स हैं 5, 7, 8, 9, 10, अगेन 3, 7, 5, 8, 7, ये मार्क्स हैं. कितने स्टूडेंट्स के, ये कितने स्टूडेंट्स हैं? इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हाँ, डेटा या रॉ डेटा. ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रॉ डेटा है. अगर मैं ये सिंगल की बात करूं, ये सिंगल, ये तो ये ऑब्जर्वेशन है, 10th ऑब्जर्वेशन. ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this 7 is 10th observation. Fine. So this is 10th observation. This is 10th observation. ये मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ क्योंकि आपके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो एक्सप्लेनेशन में से आते हैं सारे. क्लियर? आपके जितने भी ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ये नहीं है अभी सम कर लिया चलो जी छोड़ो इसको क्या सुनना है, ये तो मैडम पता नहीं कौन सी राम कहानी सुना रही है, सुनाने दो. ऐसा नहीं है, इसी में से ही एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज come to the concept of bar graph. In bar graph we have how many axes? Yes students, write down in the chat box. In bar graph, number of axes. How many axes in bar graph? Yes. Name them. Yes, Jyotin. Y-axis and X-axis. And X-axis is also known as horizontal axis. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. What is another name used for X-axis? Horizontal axis. Write down. X-axis, yes, is also known as horizontal axis. Fine. Y-axis is known as, yes, vertical axis. X-axis is known as horizontal axis. Y-axis is known as vertical axis. Fine. Next, what about this? What about this point? Yes, very good. Yes, stand up. Origin, इसकी क्या वैल्यू है? Origin की क्या वैल्यू है? Very good. This O is not zero. ये zero नहीं है. This is origin. Origin means starting of something. Origin किसको बोलते हैं? जहां से कुछ स्टार्ट होता है. सोशल में ये बहुत वर्ड यूज होता है, ओरिजिन. पता नहीं अभी तक हुआ है कि नहीं यूज. हाँ, ओरिजिन. ओरिजिन का मीनिंग होता है किसी का स्टार्टिंग. ओरिजिन कहां से हुआ? स्टार्टिंग. तो द वैल्यू ऑफ दिस ओरिजिन इज 0. अगर कोई आपसे पूछे भी ये 0 ये क्या है, तो आप इसको ये नहीं बोलोगे ये 0 है, आप इसको क्या बोलोगे? दिस इज ओरिजिन
the value of this origin is equal to 0. Yes, Saksham, raise your hand beta. Yes. मैम रॉ डाटा की मैम डेफिनेशन दोबारा repeat कर दो. बेटा रॉ डेटा का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको ड्यूटी दे दी भी अपनी क्लास में, चलो सभी के बर्थडे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. ओके, लेट अस सपोज मैंने आपको बोला भी आपने बर्थडे की लिस्ट बनानी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो अपनी क्लास की. तो वो जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं रॉ डेटा. ओके मैम. आप हर एक स्टूडेंट से पूछोगे ना आपका बर्थडे कब है, फिर आप पेपर पे नोट डाउन करोगे. वो जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज रॉ डेटा. फाइन. यस मैम. Yes. One more thing. अब कुछ बच्चों ने, वैसे तो सभी का बार ग्राफ पेपर में करेक्ट था मोस्टली. ओके, 80% स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया, बट स्टिल 20% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्या किया हुआ है, यहां पे लिखा ओरिजिन मींस ओ, यहां पे लिखा 10 और यहां पे पता नहीं क्या क्या फिर लिखना शुरू कर दिया, मींस 30 लिख दिया. फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कंटिन्यूटी यहां से स्टार्ट कर दी, 30 फिर 40 फिर 50. लास्ट टाइम मार्क्स हमने फुल नहीं कट किए. ओके, बट दिस टाइम विल गिव यू 0 मार्क्स. बिल्कुल 0, क्योंकि इसके मार्क्स मिलते ही नहीं है. लास्ट टाइम हमने मार्क्स, चलो फर्स्ट टाइम था क्योंकि 6th क्लास में फर्स्ट टाइम था, किया तो आपने 5th क्लास में भी हुआ है, बट 6th क्लास में फर्स्ट टाइम था तो स्टिल मैंने 1 या 1.5 मार्क्स दिए. बट दिस टाइम आई विल गिव 0 मार्क्स, नो मार्क्स. ये करेक्ट ही नहीं है. आपने ओरिजिन से यहां तक कितना गैप लिया, 10 का. इट मींस ऊपर 10 का टेबल ही चलेगा. दिस इज द रूल. यस, ये क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिख के जो बुक में नंबर दिए होते हैं वो लिखने शुरू कर दो. नो, आफ्टर ओरिजिन, ओरिजिन मींस द वैल्यू इज 0. अगर आपने 0 के बाद में 10 लिखा है तो उसके बाद में आपने कंप्लीट 10 का टेबल ही लिखना है. और कुछ ने क्या किया, पेपर में इंफॉर्मेशन गिवन है 15, तो यहां से ही 15 लिखना स्टार्ट कर दिया. नहीं, ये नहीं, यहीं पे ही 15 लिख दिया. कहां चलेगा, यहाँ पे ओरिजिन लिखना जरूरी है. हाँ, फिर 15 का. वेरी मच कंपल्सरी टू स्टार्ट विद ओरिजिन. आप डायरेक्टली ये मीटिंग पॉइंट को 15 नंबर असाइन नहीं कर सकते. कभी भी कोई नंबर असाइन नहीं होता इसको हमेशा कौन सा नंबर असाइन होगा, ओरिजिन. 0 नहीं, ओरिजिन. द वैल्यू ऑफ दिस ओरिजिन इज 0. दिस इज वेरी मच कंपल्सरी. एंड आफ्टर दैट अगर आपने यहाँ पे 15 लिखा है, इट मींस अपर में कौन सा टेबल कंटिन्यू करना है आपने, 15 का. ओके, 15 के बाद क्या आएगा, 30 के बाद क्या आएगा, 45. फाइन. सो लाइक दिस यू विल सॉल्व द सम. अगर 100 है तो डोंट राइट 100 हियर. ये भी लिखा हुआ था. कॉपीज भी मैंने चेक की, टेस्ट भी चेक किए, जो पेपर थे आपके एग्जाम शीट्स, 100 यहीं से स्टार्ट कर दिया. ओरिजिन कहाँ गया. वेरी मच कंपल्सरी टू राइट ओरिजिन. वेरी मच कंपल्सरी टू राइट कैपिटल X और स्मॉल x. राइट एनीथिंग. दिस कैपिटल लेटर इज नॉट कंपल्सरी. Either write small or big, your wish, but very much compulsory to name both the axes. So this is origin, this is x-axis, and this is y-axis. Next, something is missing. Tell me what. Still something is missing. Yes. Key. Scale. Yes, very good. Key, scale. Let us suppose the information of marks given to you. The information of marks given to you.
okay, in different subjects, then you will write here subject, here you will write number of students, okay. Then अगर मैंने यहाँ पे लिया है 10, 20, 30, ओके, स्केल, इसको स्केल बोलते हैं. कितना गैप है, कितना गैप है, कितना गैप है, 0 से 10 में कितना गैप है, 10. 10 से 20 में कितना गैप है, 10. 20 से 30 में कितना गैप है, दिस इज स्केल, ओके. इसको बोलते हैं स्केल. स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट. अच्छा, अब बहुत बच्चों ने लिखा हुआ है 1 बॉक्स. क्या होता है बॉक्स, क्या होता है, व्हाट इज बॉक्स? हाँ, क्यों लिखते हो 1 बॉक्स? बहुत बच्चों ने ये बॉक्स वर्ड, तो अकॉर्डिंग टू मी आपने भी यूनिट नहीं लिखा था ना. हाँ, मुझे याद आ गया. हाँ, यूनिट, यूनिट होता है बेटा, यूनिट, बॉक्स नहीं होता. क्या बॉक्स? 1 यूनिट. 1 यूनिट मीन्स जो एक सिंगल है, सिंगल जो आपका बॉक्स है, 1 यूनिट उसका एरिया होता है. लेंथ भी उसकी 1 है, ब्रेथ भी उसकी 1 है, तो उसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट्स है. तो 1 यूनिट ही लिखना है, ओके. सो 1 यूनिट, डोंट राइट बॉक्स. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. हाँ, वेरी गुड. या फिर 1 सेंटीमीटर लिखो. अगर यूनिट नहीं ना लिखना तो लिखो 1 सेंटीमीटर, बट बॉक्स मत लिखो. क्या बॉक्स, ओके. So very much compulsory to write x-axis, y-axis, okay. Another name used for x-axis is horizontal axis. Another name used for y-axis is vertical axis. Gap equal, अगर यहाँ पे 5 लिखना है तो 5 का टेबल लिखो. अगर यहाँ पे 10 लिखना है तो 10 का टेबल लिखो. Always start with origin. Yes. तो फिर यहाँ 5 स्टूडेंट्स. अगर आप 5 का गैप रखते लाइक दिस, आप ये कह रहे हो ना 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, तो फिर आपने लिखना था 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. यस, सो लाइक दिस. ये लिखना कंपल्सरी है. इस रिप्रेजेंटेशन का 1 to, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स होते हैं. ये वाले सारे लिखने, सब्जेक्ट, ओरिजिन, दिस इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन राइट डाउन द स्केल. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज फीचर ऑफ बार ग्राफ. 1 बॉक्स इज ऑलवेज वेकेंट, 1 यूनिट इज ऑलवेज वेकेंट. आपने उसको फिल नहीं करना, यहां से कभी भी स्टार्ट नहीं करते, ये रॉन्ग है. 1 कंप्लीट बॉक्स, ये जो है ना, ये एक न्यू मेथड है, हिस्टोग्राम. ये आप बाद में करोगे 8th क्लास में. 8th क्लास में है इसका कॉन्सेप्ट हिस्टोग्राम का. इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम. कभी भी ज्वाइन नहीं करते. बार ग्राफ का फीचर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है बार ग्राफ की. बी इन बार ग्राफ ऑलवेज कंप्लीट गैप ऑफ 1 यूनिट. हमेशा एक बॉक्स वेकेंट, उसके बाद में आपने नेक्स्ट बॉक्स फिल करना है. अगेन 1 बॉक्स वेकेंट. वन मोर थिंग, अब स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 1 बॉक्स का गैप देते हैं, फिर आगे जाके 2 बॉक्स का गैप. नो, ये फीचर ही नहीं है बार ग्राफ का. बार ग्राफ के फीचर्स हैं, आपने अगर रेक्टेंगल में 90 का एंगल होता है तो 90 ही होता है हमेशा. क्या आप कभी 60 भी लिख देते हो? टेल मी. हाँ, 90 होता है हमेशा. ऑलवेज राइट 90. हम 90 को 60 में चेंज नहीं करेंगे. क्लियर? सो इन बार ग्राफ द फीचर ऑफ बार ग्राफ इज ऑलवेज कंप्लीट गैप, 1 कंप्लीट गैप. ओके, so very much compulsory to give that. This thing is clear? Fine. Pictograph done, bar graph done.